गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आज मैं क्लास 11 हॉर्नबिल जो इसकी जो टेक्स्ट बुक है, मैं आज आपको उसमें से लैब्रेनम टॉप जो पोएम है उसकी मैं आपको आज समरी बताने वाला हूँ। उसको आज मैं आपके सामने समराइज़ करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद है तो एक लाइक करना। तो देखते हैं समरी कैसी है। पहले हम चैप्टर को पोएम को निकाल लेते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस मिल जाता है। देन आज हम समझने वाले हैं कि लैब्रेनम टॉप, व्हाट इज मीन बाय लैब्रेनम टॉप। जो लैब्रेनम टॉप जो पोएम है, which is written by the Ted Hegler, which encompasses that the labrum top is that like a person which stood silently as that not challenges come in their life, as not new striking feature that comes in life. So we check that when our new challenges come in our life sorry, so we get excited and try to get completed. So this chapter is similar to that. So let's try to understand what is the basic code meaning of the laburnum top. As the laburnum bird, which is refers to as the goldfinch, has come to the tree got excited. The laburnum top is silent when the goldfinch is not come as the towards the tree. The goldfinch is always silent when it is quite still. In the afternoon, the yellow September noon, a few leaves yellowing. This refers to that the season was almost autumn. ये दिखाता है कि जो सीजन था वो हमारा ऑटोमन था. Then till the goldfinch comes, जैसे goldfinch comes, then the twitching chirrup, all the words starting to twitching chirrup, and suddenly the branch end. The bird comes slowly like as a lizard and twitching chirrup and make a twitching chirrup sound. As you understand, जैसे ही bird आती है वो ची 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 करती हुई पेड़ पर आ जाती है और उसके बाद वो एकदम उसकी तरह एकदम सडनली अचानक से उस पेड़ पर आती है. Then sleek as a lizard. Sleek यहाँ पर दो कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं. एक तो sleek माने होता है द ब्राइटनेस एंड sleek इज अ मूवमेंट. एक तो वो lizard की तरह चलती है, then इस lizard की तरह चलती है. Then makes the tree alert and alert and attentive. Okay, she enters the thickness and a machine start up. In this context of poem, the machine refers to the laburnum tree which stood silently and sad not completely, but we can say that it is quite stand up. So when machine start up means new challenges comes up in real life. Then of tittering and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of our family. The important question make on this poem is that what is the engine of our family? इंजन ऑफ फैमिली यहाँ पर किसको कहा गया है? इंजन ऑफ फैमिली कहा गया है उस लैब्रेनम बर्ड को, या कह सकते हैं उस गोल्डफिंच बर्ड को जो अपने बच्चों के लिए एज कम फूड टू देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है, उसको हम कह सकते हैं लैब्रेनम इंजन ऑफ देयर फैमिली. वो अपनी फैमिली का इंजन है. और एक और कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि एक लैब्रेनम ट्री भी कहाँ तक इंजन हो सकता है अपनी फैमिली का. कैसे? जो उनको सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, उनको घर प्रोवाइड कर रहा है उनको, और उस बर्ड को उसके अपने इसको बच्चों को भी. तो क्या कह सकते हैं हम लैब्रेनम इंजन ऑफ फैमिली का हो जाएगा. दो हो सकते हैं, ठीक है ना. सी स्ट्रोक इज फुल देन फ्लिट्स आउट टू द ब्रांच एंड सी showing her barrel face identity mask. Yes, we know that the goldfinch is yellow and also the laburnum team is yellow in color, so they mixed up. The only identical mask we can identify as the black spots on their yellow ground. हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना येलो ग्राउंड मतलब येलो बॉडी पर, उसके जो येलो स्पॉट्स हैं हम उसको उससे केवल आइडेंटिफाई मास्क है उसका, हम उसको उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then with eerily delicate whistle, chirrup whisperings. जैसे ही वो अपने बच्चों के पास आती है तो अपने बच्चों से फुसफुसाहट करने लगती है. अपने बच्चों से फुसफुसाहट मतलब वहाँ से बातें करना होता है, उनको खाना खिलाने लगती है. Then she launches away toward the infinite. फिर वो फिर से उड़ जाती है. इन्फिनाइट मतलब आकाश में. Then
बैक टू द इन्फाइनाइट एज टू सर्चिंग ऑफ द फूड, अपने फिर से उसी टास्क को कंप्लीट करने चल जाती है। एंड लैब्रेनम सबसे टू एम्प्टी, और लैब्रेनम फिर से अपने स्टेट में आ जाता है, सॉरी अपने फिर से उसी स्टेज में आ जाता है जैसे पहले वो शांत था, ऐसे ही वो शांत हो जाता है। तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि हमें हमेशा जो न्यू चैलेंजेस हैं, न्यू प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कभी उठाना नहीं चाहिए, उनको एकदम डिटरमाइनिंग होकर उनका सामना करना चाहिए। ये पोएम हमको ये दिखाना चाहती है। इनकी जो राइटर है कैरी न्यूक्लियस है। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ी समझ में आई होगी। जितनी समझ में आई हो कमेंट में बताना, और आप अपना सजेशन फीडबैक आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।